کہا گیا تھا کہ تم دوپٹہ اوڑھتی ہو, تم نے نعت سنی ہے, تم مسلم کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو میں نے کہا نرگس اسٹیج پہ ڈانس کرتی ہے, کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ کرسچن ہے جو دوپٹہ نہیں اوڑھتی اور گلے ڈیپ پہنتی ہے؟ وہ بات کرنا یا آرگیومنٹس میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم یہاں پر کچھ اب ہم جو ہیں مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں, ہمارے پاس اتنے سیٹ اپ نہیں ہے الگ بٹھانے کے لیے, وہ ایک گھر ہی ہوتا ہے. جب گھر میں آتے ہیں تو پھر ہم اپنی بچیوں کی جو عزتیں ہیں پامال کرواتے ہیں. بچیوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کبھی کہ کوئی آپ کے سامنے آیا ہو اور اس نے آپ سے کہا ہو تو تے لگدی نہیں کہ تو مسیح ہے؟ کوئی ہے یہاں پہ ایسا؟ کیونکہ میں بھی جب اسکول میں تھی تو میں نے بھی یہ چیز کو دیکھا ہے. کوئی ہے ایسا تو ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ جس کو کہا گیا ہو کہ تو مسیحی لگتی نہیں ہے. کدھر ہے جی؟ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. پاسٹر جون ایڈی اور سسٹر ریچل جون نے وومن امپاورمنٹ ایک پروگرام کروایا جس میں بہت سی مسیح بیٹیاں اور بیٹے شامل تھے, اور اس میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی مشہور جو آپ سے اور مجھ سے سب سے یہی سوال ہوتا ہے کہ تم تو کرسچن لگتے نہیں. تو اسی سوال پر بہت سی بہنوں اور بھائیوں سے یہ سسٹر نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو بتائیں کس طرح سے آپ کو پوچھا گیا. تو آئیں وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. پاسٹر جون, میں ایک جس مدے پہ ہم بات کر رہے ہیں, میں یہاں پر کچھ بچیوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا موڑ آیا کہ کوئی آپ کے سامنے آیا ہو اور اس نے آپ سے کہا ہو تو تے لگدی نہیں کہ تو مسیح ہے؟ کوئی ہے یہاں پہ ایسا؟ کوئی ہے تو اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے. جنرل بات ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, پوچھنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں بھی جب اسکول میں تھی تو میں نے بھی یہ چیز کو دیکھا ہے. کوئی ہے ایسا تو ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ جس کو کہا گیا ہو کہ تو مسیحی لگتی نہیں ہے. کدھر ہے جی؟ اچھا, آپ کو کہا گیا ہے؟ اچھا, ادھر بچی نہیں, ادھر بڑا بھائی کھلوتا ہے. آگے آ جائیں, آگے آئیں, ان سے پوچھتے, ادھر سے آ جائیں, ادھر سے آ جائیں. ایک اور نے بھی بہن نے ہاتھ اٹھایا تھا, جلدی سے آگے آ جائیں ذرا. اور بھی اگر کسی نے ایسا فیس کیا ہے ایشو تو ذرا سامنے آئے. یہ پنکھا سائڈ پہ کر دیجیے گا. جی بردر, کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ جی مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں جب کالج لائف میں تھا, ہماری کوئی 70 کی اسٹرینتھ تھی. ہم 70 بچوں میں سے صرف 2 کرسچن تھے, میں تھا اور میرا ایک فرینڈ تھا. تو 1 ویک کے بعد یہ بھی نیو جوائننگ تھی, تو جو میرے مسلم کوئی 4-5 فرینڈ بن گئے, تو وہ مجھے ہر دوسرے تیسرے دن آ کے یہی کہتے تھے, پوچھتے تھے کہ یار تو مسیحی ہے؟ تو میں کہتا تھا ہاں میں مسیحی ہوں. کہتے ہیں یار تو لگتا نہیں گا. وہ 3-4 دفعہ ڈیلی انہوں نے یہی پوچھنا. تو میں بڑا پریشان تھا. تو میں نے پھر نہ سوچا, تو خدا کے آگے بھی رکھا. پھر میں نے نا انہی کے سوال میں انہی کو الجھا دیا. تو میں نے پھر ایک دن ان سے پوچھا, وہ 3-4 مسلم لوگ کٹھے تھے, وہ دوست میرے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہ یار تو مسلم ہے؟ کہتے ہاں. میں کہ لگتا نہیں. اس کے بعد سے پھر انہوں نے دوبارہ میرے سے نہیں پوچھا. اور آج بھی آپ ایماندار ہیں اور مسیح کے پیروکار ہیں؟ ایسی ہے سسٹر جی. اور مجھے تو جاب پہ بھی اور کالج میں بھی 2-3 دفعہ آفرز بھی ہوئی تھی. تو میں نے ان کو یہی بولا تھا کہ پوری دنیا کی شان و شوکت بھی میرے آگے سامنے رکھ دو, میں کبھی اپنے مسیح کا انکار نہیں کروں گا. زبردست, زوردار تالیاں بجائیں, کیونکہ یہ بائبل کہتی ہے کہ جو آدمیوں کے سامنے اس کا انکار کرتا ہے تو وہ پھر اپنے آسمانی باپ کے سامنے آپ کا انکار کر دے گا. تو آئے جانتے ہیں, یہ ماں جی کی تو کافی عمر ہو گئی ہے, تو کب آپ سے کہا گیا کہ تو تے لگدی نہیں؟ تسی تے لے بھی بڑے سونے جے. جدوں میں جوان سی نا, تو مجھے لوگ جو مسلم تھے نا وہ کہتے تھے آپ مسیح نہیں لگتی, کرسچن یا عیسائی نہیں لگدی, تے لیکن تو پٹھانی لگنی ہے. تے اسی مسیح چ مجبوط سی, مسیح تو تھوڑے جے دور بھی سی پر مسیح چ مجبوط سی. تے لیکن کافی لوگوں نے مجھے یہ بھی دیا کہ آپ مسلم ہو جائے, آپ تو کرسچن لگتی نہیں. تو میں اپنے مان میں مضبوط اور یسوع کے نام کو جلال اور یسوع کے نام کو ہی جلال دیتی رہوں گی. آمین. تو آپ اپنے ایمان میں پختہ رہی. خدا ہم آپ کو برکت دے. اور خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو اپنے ایمان میں پختہ رہنے کی ضرورت ہے. مذہب بہت سارے ہیں, ہر مذہب جو ہے وہ اپنی جگہ پر
अच्छा काम कर रहा है, जो उनका मजहब है वो अपने लिहाज से अच्छे हैं, लेकिन जो आपका मजहब है आप अपने मजहब के अंदर ईमानदार रहें। ये मेरा और आप का अकीदा है कि मुझे और आपको अपने ईमान में मजबूत होना चाहिए। थैंक यू सो मच, तशरीफ रखिएगा, खुदावंद आपको बरकत दे। एक बात मैं करना चाहती हूं कि अपनी बेटियों को ईमान दो, अपनी बेटियों को ईमान दो, वो दुनिया नहीं बल्कि नस्लें बदल देगी। बिल्कुल सही। समझ आ रही है कि अपनी बेटियों को ईमान दो, वो दुनिया नहीं बल्कि नस्लें बदल देंगी। तो इसलिए चाहे शक्लो सूरत, चाहे रंग रूप, कोई भी आपके सामने आ जाए, लेकिन आप अपने ईमान में पुख्ता रहे, न डर रहे, बेखौफ रहे, क्योंकि खुदा आपके साथ है। जी पास्टर जॉन। रेचल, मेरे पास बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। जी जी, उसके बाद हम ये इस बहन टॉपिक भी पर हमसे जाएंगे। बात करना चाहती आप है। कर लें पहले। जी बाजी। जी, मुझे ऐसा कुछ तो नहीं कहा गया कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो लगती नहीं। मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूं। 16 साल मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, माइनॉरिटी के हवाला से, स्पेशली बच्चियों को केसेस को डील करने के हवाला से। तो मैं बात करना चाहूंगी कि हमारी जो अभी बहुत सारी कन्वर्सेशन सुनी है जहां पे बताया गया कि हमारा ईमान कैसा होना चाहिए, हम गरीब हैं या हम किस तरह से है। मैं बात करती हूँ स्टेट की, रियासत की क्या जिम्मेदारी है। रियासत में रहते हुए यहाँ पे हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो है वो मैं बात करूंगी। जब किसी रियासत में हम मौजूद होते हैं तो रियासत हमारी माँ होती है और वहाँ पे हर किस्म के मजहब के लोग रहते हैं। रियासत का काम है प्रोटेक्ट करना। रियासत हमारी इस तरह से प्रोटेक्ट करती है कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप माइनर बच्चियों के जो केस हैं या माइनर बच्चियां शादी नहीं कर सकती, अदालतें इन चीजों को इग्नोर करती हैं और उन असूलों को या उस कानून को जो बनाए हुए हैं रद्द करते हुए बच्चियों की कस्टडी जो है वो मुसलमानों के हाथों दे देती हैं। इसमें ना तो माँ बाप कुछ कर सकते हैं, ना ही हमारा दीन या मजहब कुछ कर सकता है। मुझे भी ये कहा गया था कि तुम दुपट्टा ओढ़ती हो, तुमने नाच सुनी है, तो मुस्लिम क्यों नहीं हो जाती। तो मैंने कहा नरगिस स्टेज पे डांस करती है, क्या वो मुसलमान है, क्या वो क्रिश्चियन है जो दुपट्टा नहीं ओढ़ती और गले डीप पहनती है। वो बात करना या आर्ग्यूमेंट्स में जब हम जाते हैं तो हमारा मजहब या हमें ये थ्रेट दिया जाता है कि हम मार दिया जाएंगे। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे पूरी फैमिली है मुस्लिम्स के दरमियान में रहती है और उनको ये कहा जाता है कि हमारी दुकानों से आप सौदा नहीं खरीद सकते, या घर उठाओ, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ मुसलमान हो जाओ। मुझे बताएं कि वहां पे कहाँ ईमान रहता है जब आपके बच्चे भूखे मारे हों और आप अपने घर का साहिबान जो है खत्म नहीं करना चाहते और चले जाते हैं। तो रियासत की जिम्मेदारी है कि वो जो रूल्स बनाती है उनको फॉलो करवाना और उन पे इम्प्लीमेंट करवाना भी सीखे। शुक्रिया। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मैं मच। एक बात, सॉरी पास्टर जॉन, मैं एक बात करना चाहती हूँ कि देखिए, जब एक इंसान मुल्क के अंदर रहता है, एक धरती के ऊपर रहता है, तो जैसे मौसम आते हैं, कभी सर्दी आती है, आप अपने आप को जर्सियां, स्वेटर, कोट पहन के प्रोटेक्ट करते हैं। फिर गर्मी आ जाती है, मौसम बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, फिर आप एसी लगाना शुरू कर देते हैं। फिर एक वक्त आता है कि बारिश बरसने लगती है, फिर आप छतरी का इस्तेमाल करते हैं। हालात बदलते रहेंगे, तब्दीली आती रहेगी, लेकिन आपने बचाव अपना आप जो है वो खुद करना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे मजहब जितने मर्जी क्यों ना मौजूद हो, लेकिन जो आपका मजहब है आपने उसमें मजबूत खुद रहना है। कैसे आपने मसीह में कायम रहना है, ये आपने खुद कायम रहना है। किसी ने कोई आपको गोली नहीं देनी या किसी ने कोई कैंडी नहीं देनी कि ये खा लो या कलाम को अपने अंदर निगल लो। ऐसे नहीं होना। जब तक आप यीशु अल मसीह के पैरोकार नहीं बनेंगे, ईमान नहीं रखेंगे, उसमें मजबूत नहीं रहेंगे, खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप अपने ईमान में मजबूत नहीं रहेंगे। तो ईमान में मजबूत होने के लिए जो है वो हमें मसीह को लेना चाहिए, उसके साथ रफाकत करनी चाहिए। जी पास्टर सो मच रेचल। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी। मेरे पास भाई नौमी है। भाई नौमी, प्लीज जरा सामने आ जाए जल्दी से। वेलो सोना मुंडा, हाँ। भाई नौमी, क्वेश्चन किया जाता है, एक सवाल है मेरा कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमने देखे हैं इस वक्त, उसके अंदर तू मेरा चाचा है, तू मेरा मामा है, सही है, आपका आना मेरे घर के अंदर जो है शुरू हो गया, सही है, वही फिर चाचा, मामा, ताया, वो फिर कार्रवाई पा देता, सही है ना, वही बेटियों को फुसलाता है, छोटी बेटी को और
लेके जो है चला जाता है। क्या वालिदैन को ये चाहिए कि वो अपने घरों के अंदर बाउंड्रीज को बिल्ड करें, अपने ये जो फर्जी रिश्ते हैं इनको घरों से बाहर रखें? क्या ख्याल है आपका? भाईजान, इसमें बहुत अच्छी आपने बात की है कि ये जो रिश्ते, खास तौर पे पहले ना बाइबल इस चीज की वजाहत करती है कि गैर कौमों में ना जाएं, और गैर कौम, अक्सर ये लोग हमारे से सवाल पूछते हैं कि गैर कौम क्या होती है। तो गैर कौम यही है जिसको हम जानते नहीं है, जिसको पहचानते नहीं है, वो हमारे लिए गैर है। नहीं, मैं समझता हूं, देखें, हमारा मिलना गिलना तो है, आपने कॉलेज में भी मिलना है, अपने स्कूल में भी मिलना है, अपने कारोबार पे भी मिलना है, आप अगर रिक्शे पे चले जाएं वहां पे भी टाकरा होना है, मिलना तो है ही है। घरों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि घरों के अंदर जो दाखिला है ना वो बड़ा खतरनाक है। घरों में नहीं आना चाहिए, अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहिए। मोस्टली अब हम जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास इतने सेटअप नहीं है अलग बिठाने के लिए। वो एक घर ही होता है। जब घर में आते हैं तो फिर हम अपनी बच्चियों की जो इज्जतें हैं पमाल करवाते हैं। जब हम अपनी पंचायतें इनके पास लेके जाते हैं, इनके डेरों पे बैठते हैं, तो फिर हम अपनी इज्जतें इनके आगे लेके जाते हैं। देखें, मुलाकात जो है बाहर भी हो सकती है, सही है, बाहर कहीं पार्क में भी हो सकती है। अगर मेरी आपके साथ यारी है, सही है, मैं घर से बाहर भी आपके साथ मिल सकता हूँ। जरूरी तो नहीं है कि मैंने अपने घर को ही खोलना है। ये जो मेंटालिटी है हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल अपने घरों में दाखिल नहीं होने देना चाहिए। ये आज सारे लोग बैठे हैं, तो मेरा ईमान और यकीन है कि आज का ये जो प्रोग्राम था बड़ी बरकत हासिल करेंगे और बड़ी चीजें सीखने को मिली हैं लोगों को। अभी बाजी ने एक बात की थी चॉकलेट के हवाले से। ये लोग चॉकलेट देते हैं, तो ये लोग पहले ये सारी चीजें देके सर पे बिठाते हैं, बाद में पैर की जूती बनाते हैं। बहुत से केसेस इस तरह के भी मैंने देखे हैं कि बाद में हमारी लड़कियां रोती हैं। और जब हम लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, सिर्फ एक लफ्ज बोले आप कन्वर्ट हो गए। जब इनमें से किसी को लाया जाए तो 20 जगह से हमें वो लेनी पड़ती है इजाजत, और किसी ना किसी जगह से जाके लड़की स्लिप हो जाती है। तो आप लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं या जितने भी बैठे हैं, आप लोगों से गुजारिश है जिंदा खुदा को देखें। यहाँ पर कोई भी बंदा किसी के लिए जान नहीं दे सकता, ना मैं दे सकता ना आप दे सकते हैं। खुदा ने हमारे लिए जान दी, तो आप उसका इनकार क्यों कर रहे हैं? उसका इनकार नहीं करें, इन लोगों को अपने घरों में नहीं आने दें। जब इन सब चीजों को आप देखेंगे तो फिर ये जो तब्दीलियां हैं ये आप खुद देखेंगे अपने घरों में। यानी हर पेरेंट को चाहिए कि अपनी बाउंड्रीज को बिल्ड करे। पेरेंट, माँ हो या वालिद हो, उनको चाहिए कि जो अपनी यारी दोस्तियां रिश्तेदारी हैं उनको घर से बाहर रखें। जो आपके ब्लड है वही आपके पास हो, बाकी सबको बाहर रखें। थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही अच्छा सवाल था और इसके बहुत ही अच्छे जवाब हमें सुनने को मिले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है पास्टर जॉन एडी और सिस्टर रिचल जॉन ने कि जिन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा उन मुद्दों पर ये बात कर रहे हैं। आपके इस वीडियो के मतलब क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसी और मज़ीद मसीही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।